Hi, I welcome you all to my third lecture of casting process. Let's start this lecture with a brief introduction of myself. My name is Divyansu Pandey. I've done my master's from IIT Kanpur and I'm having 3 years of teaching experience. And till now, we have covered 2 lectures of casting process. And in those 2 lectures, we have covered some basics about casting and the allowances, different allowances, type of pattern. So one pattern type was remaining. So we will cover this last type of pattern. Then we will move further. So this kind of pattern is known as follow board pattern, and basically follow board pattern is used where some kind of weaker portion is available in the pattern. After that only we use follow board pattern. So basically, if you observe this diagram, so this shaded portion is a board, follow board, and this hollow portion is a pattern. बेसिकली हॉलो नहीं है, मतलब डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंट करा हुआ है. So you can see this thicker portion seems like having some good kind of strength, and this weaker portion, this thinner portion seems like some kind of weaker. अभी आप कहोगे सर ये देखकर आप कैसे बता रहे हो ये वीक होगा और ये सॉलिड होगा. सो इन कास्टिंग व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट पैटर्न ओवर सम सैंड इन अ मोल्ड बॉक्स, और फिर हम ऊपर से उनमें सैंड जो है वो यहाँ पर भरते हैं. देन वी फिल सैंड ओवर दिस पैटर्न, एंड आफ्टर फिलिंग सैंड वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर कंपैक्शन. ओके, और उस फोर्स को हम रैमिंग फोर्स कहते हैं. सो if you are not providing any kind of support to this thinner portion, then after applying this ramming force, this thinner portion can break easily. Okay, यहाँ पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, then this thinner portion might break. Okay, and we don't want to break our this pattern, otherwise our cast will be damaged. जो proper cast हमें चाहिए वो मिलेगा नहीं. So that's why to support this thinner portion we provide a board, and this board is known as follow board. ठीक है, तो ऐसा कोई पैटर्न जिसमें कुछ थिनर पोर्शन हो, जिसमें सपोर्ट की जरूरत हो, so there only we use follow board pattern, and that board which is used for supporting purpose is known as follow board. Okay, so I think this is clear. Now we have covered all pattern types. Now we will discuss about core. So core is very important component in casting. So first of all we need to know what is core. So let's say we want to make a certain kind of casting. एक कोई ऐसा कास्टिंग है जो हमें बनाना है. ओके, एंड इट इज हैविंग अ काइंड ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर जो है इसके अंदर कुछ हॉलो स्ट्रक्चर है. यू कैन से सम अमाउंट ऑफ हॉलो सिलेंडर इज देयर इनसाइड दिस. Okay, similar to this diagram which is shown in this slide. Okay, you want to make this kind of casting. So you can easily make this casting by using a pattern like this. But one thing which is different here is this cavity. So you want to have this cavity also. So for having this cavity in casting, you need to provide some kind of solid material in this area. Okay. What will happen when you provide this solid material in this area? When you pour molten metal inside this cavity, okay, when you pour molten metal through this line inside the cavity, so there is a solid material here, and this solid material will stop this molten metal to enter into this side. Okay, इस एरिया में जो molten metal को घुसने से रोकेगा, and after solidification you will get a component like this, and then after you can remove this solid material also, and this solid material is only known as core. Okay, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा what is happening here. This is our cavity and we want to make hollow portion here. So यही समझिए, जहाँ पर hollow portion हमें बनाना है वहाँ पर हम एक solid component रख देते हैं. जहाँ पे hollow बनाना है वहाँ solid रख देते हैं. The place where you want to make any kind of hollow region, create hollow region, we place a solid object there only. So what happens after placing solid object? वहाँ पर molten metal नहीं जाता है. Molten metal can't move in that region where you have placed this solid object, and that solid object is only known as core. Okay,
So I think this concept of core is clear. Why do we need this core? Now there are some other criterias which are very essential if you are going to use core in casting. Okay, so those important aspects we are going to discuss in next slide. Okay, so there should be some kind of characteristics in core. Good core should have certain kind of characteristics. So all characteristics are mentioned here. The first one is green strength. Okay, so green strength basically, first of all, you need to know what is green sand is. So green sand means a sand which is having a kind of moisture content is known as green sand. So green sand should have some kind of strength. So core made of green sand should be strong enough to retain the shape till it goes for baking. So in starting, what we do when we put sand inside a box, that sand is like green sand, थोड़ा moisture होता है उसमें. So core भी जब हम place करेंगे, so core is also made of kind of sand और उसमें भी कुछ moisture होगा. So उस moisture content वाले sand को हम green sand बोल सकते हैं और उसके जो strength होगी that is known as green strength. So some strength should be there. कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए, अदरवाइज वो अपना जो शेप है वो रिटेन नहीं कर पाएगा. इफ सैंड इज नॉट हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट्स स्ट्रेंथ. अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं है, इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपना ही वेट अगर यहाँ पे फॉलो करे, देन इट विल ब्रेक डाउन फ्रॉम हियर. सो ऐसा हमारे पास कोर नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट मेंशन्ड हियर इन ग्रीन स्ट्रेंथ. नाउ द सेकंड पॉइंट इज ड्राई स्ट्रेंथ. ओके, व्हाट इज ड्राई स्ट्रेंथ? सो व्हेन यू पोर मोल्टन मेटल, और या फिर जब आपका जो ग्रीन सैंड है वो जब हीट आफ्टर टेकिंग हीट द मॉइस्चर गेट वेपराइज्ड एंड द ड्राई सैंड रिमेन्स. सो ड्राई सैंड शुड हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन विदहोल्ड द फोर्सेज अप्लाइड बाई मोल्टन मेटल. ओके, जो मोल्टन मेटल प्रेशर अप्लाई करेगा जब आप उसको पोर करेंगे तो उस समय आपका जो सैंड है वो ड्राई हो चुका रहेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे all moisture will get vaporized. After that dry sand should have adequate strength to hold the molten metal. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, it should be able to resist molten metal pressure acting on it. Okay, I think these 2 points are clear. Now the third characteristic is refractoriness. So what is this refractoriness? It is basically नाम से आपको पता होगा, it is ability to withstand high temperature. So obviously your core should have this property because after pouring molten metal the temperature will be very high. So at that temperature इसकी जो भी shape है वो core का वो damage नहीं होना चाहिए, change नहीं होना चाहिए. So it should have ability to withstand high temperature. Now permeability. What happens when you pour a molten metal? Some gases tries to come outside from the cavity, from the mold. Okay, so your core should be able to pass that gas. ऐसा नहीं है कि core वो गैस को पास नहीं होने दे रहा है. अगर core उस गैस को पास नहीं होने देगा, then that gas will be trapped inside the casting, and that will cause casting defect. So the core should have a permeability property also. Now collapsibility. What is collapsibility basically? We have discussed about the shrinkage of any molten metal. Okay, when we pour molten metal, the shrinkage happens after decrease in temperature. So जब shrinkage होता है, so the core should also shrink. So if core is not shrinking and your cast is shrinking, then some breakage may occur in your cast because core will resist the shrinkage of mold, or you can say the casting. Okay, so core should also be able to decrease its size. Okay, so this property is known as collapsibility. So collapsibility का मतलब क्या है कि अपने साइज को टेम्परेचर जब वो कॉन्ट्रैक्शन हो तो उस अपने साइज को वो भी रिड्यूस कर सके, जो कोर है, दैट इज नोन एज कोलैप्सिबिलिटी. ओके, नाउ अभी तक हमने देखा कि भाई जो कोर है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैंड एंड द बाइंडर्स विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर मेकिंग कोर. सो कोर इज ऑल्सो मेड ऑफ सैंड, बट द प्रॉपर्टी ऑफ कोर इज अ लिटिल डिफरेंट एज कम्पेयर टू सैंड विच वी आर यूज इन मोल्डिंग. सो कोर शुड हैव स्ट्रेंथ. सबसे पहली बात है कोर के अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए. आफ्टर दैट ओनली इट कैन विदहोल्ड ऑल द फ्लूइड प्रेशर अप्लाइड बाय द मोल्टन मेटल. सो दैट्स व्हाई द मेकिंग प्रोसेस ऑफ कोर इज आल्सो डिफरेंट एज कंपेयर टू नॉर्मल सैंड.
So first of all, discuss about the sand which we use for making core. So silica sand use होता है which is completely devoid of clay. इसमें clay बहुत नहीं होता है, ना के बराबर होता है. Is generally used for making core sands. Okay. Now sand use हो गया. Now we use binders. Now we use binders to hold all small particles of the sand together. So basically in core sands we use binders other than clay. In normal sand, molding sand, we use clay as a binder. But यहाँ पर हमें जो core है उसको ज़्यादा strong बनाना है. So strong ज़्यादा बनाने के लिए हम clay के अलावा दूसरे binders use करते हैं. And those binders are mentioned here: linseed oil, core oil, resins and dextrins. ये सब कुछ binders है जो use होते हैं. आप इसको एक बार go through कर सकते हैं इस जो पैरा मैंने लिखा हुआ है. Okay, so these things were about core. नाउ कोर प्रिंट, जो कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बोला था कि इसको सपोर्ट भी करना होगा हमें कोर को. सो देयर आर टू थिंग्स विच वी नीड फॉर कोर. फर्स्ट वन इज टू सपोर्ट एंड सेकेंड वन टू पोजिशन इज करेक्टली, टू पोजिशन इट करेक्टली. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोजिशन ऑफ कोर. सो होता क्या है कि दिस इज योर कास्ट, दिस इज योर कास्ट. अब यहाँ पे आपने कोर को ऐसे प्लेस कर दिया. ओके, यू हैव प्लेस दिस कोर हियर. Now after pouring molten metal, the density of molten metal will be high and the density of core will be less. Okay, so there would be some buoyant force which will act over this core. So जो कि इस core को lift करने का प्रयास करेगा. So that buoyant force will try to lift this core. Okay, जो भी buoyancy लगेगी that will try to lift this core, but we don't want to displace this core from its original position. So for that only we use core print. Okay, this extra part which you can see in sand area is known as core print. So core print helps core to position its original position. Okay, तो जो core print होता है वो help करता है आपके core को कि वो जो position है उसका वो correct हो, वो चेंज ना हो बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड प्रेशर एंड द बुएंट फोर्स. उसकी वजह से ये पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए. फॉर दैट ओनली वी यूज कोर प्रिंट. ओके, नाउ यू मे आस्क दैट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बुएंसी फोर्स या बुएंट फोर्स विच विल एक्ट ऑन द कोर. सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला. So buoyant force basically acts by the amount of fluid which is displaced by this core. Okay, और कितना fluid जो है core displace करेगा, it will displace the volume which is covered by this core. Core जितना volume cover कर रहा है उतना ही volume displace करेगा. तो let's say that volume is V. Okay, so V is the volume and let's say density of core is rho C. Okay, so rho C into V, this will be the mass, and if you multiply it the G, this will be the weight of core which will act downwards, but buoyant force will act upward. And what will the amount of buoyant force? That will be equal to rho liquid. Let's say the density of liquid is rho L, and again the volume will be same, and G. Okay, so this will be the force, buoyant force which will act on your core. Same thing is written here like this. ठीक है, volume is common which is taken outside. So this is the buoyant force which will act over the core. Okay, ये simple fluid mechanics वाला concept है कि भाई जितना fluid है जो हमारा object हटाता है उतना ही volume उस पे buoyant force लगाता है. So I think this is clear. So now chaplets. Basically, why I'm discussing about this small things, core prints and chaplets. What happens in your GATE and some public sector exams? They ask some multiple choice questions. Some matching questions. In matching questions, they ask the relation between different properties, different components. So they may ask that core prints is related to. अब ऑप्शन में दे सकता है कास्टिंग से रिलेटेड है, वेल्डिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है. सो यू विल बी एबल टू मैच दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू हैव स्टडीड दिस ऑल दीज थिंग्स. सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स. एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड दैट व्हाई डू वी यूज कोर प्रिंट्स. देयर माइट बी ऑप्शंस लाइक कोर प्रिंट्स इज यूज्ड टू सपोर्ट कोर, core prints is used to position core correctly. अब देखिए दोनों मिलता जुलता लग रहा है. The first one says core print is used to support core.
द सेकेंड वन सेज कोर प्रिंट इज यूज टू पोजिशन द कोर. सो पोजीशन, जो करेक्ट पोजीशन है वो वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए हम चैपलेट्स यूज करते हैं. ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है. इसीलिए छोटी छोटी चीजें जो थ्योरी वाली पोर्शन है हमें साथ साथ पढ़ते चलना है. न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही है, बट वी नीड टू थ्योरी पार्ट ऑल्सो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच इज अगर आप उसको पढ़े हो तो इजिली यू कैन मेक दोज क्वेश्चन करेक्ट. नाउ चैपलेट्स. सो आई टोल्ड यू दीज मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स यूज टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द कैविटी. ओके, अब मान लीजिए ये आपका, दिस इज योर कैविटी, दिस इज योर कैविटी and you have kept here this core. Now core needs some kind of support. Okay, core needs some kind of support, and that support is given by this metallic object which is used inside this cavity. So metallic object जो कि support करता है core को, उसको आप chaplet बोलोगे. और core pin क्या होता है, आपको करेक्टली पोजीशन करने के लिए जो चीज आप यूज करते हो, करेक्टली पोजीशन करने के लिए जो ये एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे निकला हुआ है, ये करेक्ट पोजीशन के लिए यूज होता है, इसको core print बोलते हैं. इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन आस्क्ड इन ESE 2015. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. ये आई थिंक बुएंसी फोर्स पे ही है. सो अ बिग कास्टिंग इज टू हैव अ होल टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ कोर ऑफ 10 सेंटीमीटर diameter and 200 centimeter long. The density of metal is this. ये स्पेसिफिक वेट दे रखा है. ओके, ये स्पेसिफिक वेट है. एंड density of core is this. What is the upward force acting on the core print? इसमें buoyant force पूछा है. So अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि भाई जो फोर्स है, buoyant force है, वो वॉल्यूम टाइम्स रो लिक्विड माइनस रो कोर टाइम्स जी इसके बराबर है. ये चीज हमने देखा था, राइट. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रो जी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस. V is volume, rho liquid times G minus rho core times G. Now this rho G value is already given, so directly I am putting all these values here. So volume, what will be volume? Pi, and dia is 10 centimeter. Okay. So all listen, all things are in centimeter. तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में रखेंगे, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. देन यू विल गेट आंसर इन न्यूटन. सो नीड नॉट टू चेंज दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर. ठीक है, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे. एंड द लेंथ इज 200 एंड लेट्स डिवाइड इट बाई 4 बिकॉज आई एम यूजिंग दिस डाया हियर. नाउ लिक्विड का जो स्पेसिफिक वेट है दैट इज गिवन मेटल का 0.07 0.077 minus 0.0165. Okay, I think this is correct till now. After doing calculation you will get the value of this buoyant force, and that will be about 950.32 Newton. So I'll encourage you to solve this question and check whether your answer is correct or not. Okay, so in this way you can solve this kind of questions. So in GATE they have never asked such questions. Theoretical question पूछा गया है, but not this numerical portion. But in public sectors and other exams they have asked such questions. So I have given one question from the previous year. Okay, I think this is clear. You can pause video and solve this question by yourself. Okay. Now we will discuss about the properties of sand which are required for good casting. Okay, so पहले तो जो कास्टिंग में हम जो सैंड यूज करते हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है जनरली, वो हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में. सो आई एम मेकिंग दिस स्लाइड basically I'm making this slide by taking reference of your GATE examination and other public sector examination. तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम वही चीज़ कवर कर रहे हैं उसी टाइप से, क्योंकि हमारा मोटिव वही है. तो हमने देखा है कि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई मॉइस्चर कंटेंट कितने होने चाहिए आपके मॉडलिंग सैंड में. सिलिका कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट पूछा गया है. ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस. तो मे बी आगे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई क्ले कंटेंट कितना होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दिस डेटा. ओके, तो सिलिका परसेंट इज बिटवीन 70 to 85%, क्ले 10 to 20%, वाटर 2 to 8%. एडिटिव यूज होते हैं कुछ प्रॉपर्टी इनहेंस करने के लिए, वो 1 to 6% होते हैं. ठीक है,
अब जैसे ये है, ये परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जो आपका वुड फ्लोर है ये परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये लिंसीड ऑयल है, स्ट्रेंथ देता है। कोल्ड डस्ट है जो आपका जो फेस है वहां पर भी यूज करते हैं, सरफेस फिनिश इससे अच्छी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसलिए यूज करते हैं। ओके, आई थिंक मैंने आपको बता दिया। आप एक बार और इसको पॉज करके वीडियो ध्यान से इसको एक बार अपने नज़र में बैठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं कि वुड फ्लोर किस लिए यूज होता है। तो वुड फ्लोर आपका क्या बताया था मैंने, परमेबिलिटी इनहेंस करने के लिए होता है, ये स्ट्रेंथ के लिए होता है लिंसीड ऑयल, और कोल्ड डस्ट सरफेस फिनिश अच्छा बेटर करने के लिए होता है। ओके, अब हमें क्या देखना है, नाउ वी नीड टू कवर सम प्रॉपर्टीज विच आर इसेंशियल इन मोल्डिंग सैंड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्रैक्टरीनेस. So refractoriness is a property which tells us about the stability of the component at high temperature. So it is ability of withhold high temperature, withstand high temperature. इसी को रिफ्रैक्टरीनेस कहते हैं, क्योंकि मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका सैंड इतना है कि उसमें फ्यूजन स्टार्ट हो जाए, ऐसे ही आप मोल्टन मेटल्स में पोर करो, दैट शुड नॉट हैपन। तो रिफ्रैक्टरीनेस इज अ प्रॉपर्टी विच टॉक्स अबाउट the high temperature withholding capacity of a sand. Okay, second one is green strength. ये वही है जो हमने कोर वाले में डिस्कस करा था कि आपका जो ग्रीन सैंड होता है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपना शेप अपना जो है वो रिटेन कर पाए. ओके, सो योर ग्रीन सैंड शुड हैव कैपेबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप. ओके, सो दैट इज नोन एज ग्रीन स्ट्रेंथ. adequate amount of green strength is required. The third one is dry strength. Again, after pouring molten metal, your moisture will get evaporated, and now there will be dry sand, and that dry sand should have certain amount of strength so that it can hold the molten metal. तो molten metal के साथ जो forces वगैरह लग रहे हैं वो handle कर पाए. There is term I used here, मेटालोस्टैटिक फोर्सेस. तो मेटालोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं बेसिकली, जो मेटल, जैसे आप जब मोल्टन मेटल व्हेन वी पोर मोल्टन मेटल इनसाइड द कैविटी, देयर शुड बी सम हेड ऑफ दैट मोल्टन मेटल. कुछ हेड होगा उसका, कुछ हेड से वो आ रहा होगा, कुछ हेड उसके अंदर होगा मोल्टन मेटल में. सो बिकॉज ऑफ दैट हेड सम फोर्स विल एक्ट ओवर दिस द सराउंडिंग एरिया, द सैंड. ओके, सो वही फोर्सेस को हम मेटालोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हेड, जो फ्लूइड के हेड की वजह से जो एक्ट हो रहा है. Okay. Now the fourth property is permeability. This is also the property which we have discussed in characteristic of core. So यहाँ पर भी होना चाहिए. Permeability is basically the ability to pass air. जो air को pass करने की ability होती है, that is known as permeability. So permeability should be there inside. If permeability is less, then some air might trap inside the cavity, and that can cause casting defect. Okay. सो इसकी वैल्यू आपका 60 से 120 के बीच में होता है. इट इज़ डिफाइंड बाय अ नंबर, परमेबिलिटी नंबर. परमेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला नीचे दिया है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, द फिफ्थ इज कोलैप्सिबिलिटी. कोलैप्सिबिलिटी अगेन द सेम थिंग. सो आफ्टर ड्यूरिंग श्रिंकेज द साइज ऑफ कास्टिंग रिड्यूसेस, सो योर सैंड शुड ऑल्सो सपोर्ट इट. यहाँ पर कोर लिखा हुआ है, वो पुराना वाला डेफिनेशन ही आ गया है. तो ये जो प्रॉपर्टी है कोलैप्सिबिलिटी, ये आपके सैंड के अंदर भी होनी चाहिए. कोर के साथ साथ जो है आपके सैंड के साथ भी होनी चाहिए. दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी इसेंशियल है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए. नाउ हार्डनेस. हार्डनेस इज बेसिकली अ सरफेस प्रॉपर्टी. ओके, ये बेसिकली सरफेस प्रॉपर्टी है जो कि मोल्ड सरफेस नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये जो इरोजन है, इरोजन होने से रोकता है. सर्टेन अमाउंट हार्डनेस इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द इरोजन ऑन द सरफेस. ओके, तो अगर आपका सरफेस जो है वो इरोजन को भी रोक नहीं पा रहा है, दैट सर्टेन डज नॉट हैव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ हार्डनेस, देन इरोजन विल अकर ओवर द सरफेस, और आपका जो कास्टिंग का शेप है वो चेंज हो जाएगा, डायमेंशनल एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी. और अगर इतना हार्ड आपका कास्ट नहीं है, जो आपका कैविटी नहीं है, तो जो प्रेशर अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा मोल्टन मेटल के द्वारा, वो भी होल्ड नहीं कर पाएगा कास्ट, और शेप डैमेज हो जाएगी. दैट्स वाई हार्डनेस इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल प्रॉपर्टी फॉर गुड सैंड. ओके, कुछ यहाँ पर डेटा मैंने ऐड कर रखा है, एक मोल्ड हार्डनेस नंबर. अब देखिए, अगर ज़्यादा हो जाएगा हार्डनेस, इफ यू मेक योर दिस सैंड मोर हार्ड, इफ यू मेक योर मोल्ड मोर हार्ड, देन व्हाट विल हैपन, एयर विल नॉट बी एबल टू एस्केप. एयर जो है वो एस्केप नहीं हो पाएगा, मतलब परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी.
Okay, or if you are reducing this hardness number by significant number, then erosion will occur. Okay, that is also a very non-desirable thing. So that's why we keep this hardest number between certain limit. कुछ लिमिट के अंदर रखते हैं कि थोड़ा सा परमेबिलिटी भी हो और हमारा जो कास्ट है, जो मोल्ड है, वो उसके अंदर कुछ इरोजन रोकने की कैपेसिटी भी हो. Okay, now flowability. So ability of molding sand to reach all the corner of the molding box after applying ramming force. जब हम फोर्स लगाते हैं ऊपर अपने सैंड भरने के बाद बॉक्स के ऊपर पैटर्न अंदर रखने के बाद, सो देयर आपका जो सैंड है दैट शुड मूव टू एवरी कॉर्नर ऑफ द मोल्ड. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी बेसिकली नोन एज फ्लोएबिलिटी. अगर फ्लोएबिलिटी नहीं है तो प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाएगी आपके सैंड की हर जगह पे, जिससे कि प्रॉपर कास्टिंग हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. Now let's discuss about this permeability number. So for permeability number there is a formula which I have mentioned here. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यूनिट की है. यहाँ पे यूनिट अलग है, जो हम सिंपल SI यूनिट यूज करते हैं वो वाला यूनिट यहाँ पे है नहीं. So the formula is VH upon PAT, and now I have mentioned here the meaning of every term. सो V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द एयर, और ये जो है ये सेंटीमीटर क्यूब में ही रखना होता है. ठीक है, अब कितना वॉल्यूम एयर पास हो रहा है, दिस इज अमाउंट ऑफ दैट वॉल्यूम, दिस इज दैट वॉल्यूम जो एस्केप हो रहा है. ओके, H इज द हाइट ऑफ सैंड स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन की हाइट है, जितनी हाइट का स्पेसिमेन है उसकी बात करेंगे यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर. नाउ P इज द एयर प्रेशर, द प्रेशर विच पासिस थ्रू योर मोल्ड, दैट शुड हैव उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा. उस प्रेशर की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी केप्ट इन G अपॉन सेंटीमीटर. ऐसे इस यूनिट में आप पुट करोगे. A यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और T आपका जो स्केप टाइम है आपका एयर का, कंप्लीटली एयर कितने देर में स्केप हो जा रहा है, और इसको मिनट्स में रखते हैं. इस पे भी न्यूमेरिकल आपके गेट में काफी पहले पूछा गया था, अभी रिसेंटली नहीं पूछा गया, बट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तब तो आप न्यूमेरिकल कर लोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. अगर आएगा तो सीधे न्यूमेरिकल इसी पे आएगा. सो फॉर्मूला अगर याद है, और सेकंड थिंग यू शुड नो द यूनिट, कौन से यूनिट पे क्या चीज यहाँ पे पुट करना है. ओके, ठीक है. तो अभी तक हमने जो प्री रिक्विजिट चीजें थी, जो कुछ प्री रिक्विजिट कैरेक्टर्स थे, उनको हमने देख लिया है. अब हम थोड़ा सा मूव इन कर रहे हैं जो मेन रोल है हमारे कास्टिंग में, इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है विच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं. So now gating elements and design of gating elements are very important if you are taking consideration of different competitive exams. So till now what we have covered is also important, and the questions were asked from that region also, but the ratio of question which is asked from this portion, element of gating system and gating design and other some different kind of casting, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं. सो ये वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा माहौल तैयार कर रहे थे, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स दिस इंपॉर्टेंट जोन. So now we will discuss about all different elements which are essential in gating system, and after this, after getting familiar of each component, we will talk about the design. अभी पहले हम जान तो ले भाई कि होता क्या क्या एलिमेंट है, फिर हम उसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे. तो पहले आज बेसिक थोड़ा सा नॉलेज लेना है कि कौन कौन से कंपोनेंट है, एलिमेंट्स है इन गेटिंग सिस्टम. So I have written all the elements of gating system and I have drawn a diagram here. मैंने यहाँ पे खुद ही से एक डायग्राम ड्रॉ किया है अच्छे से समझाने के लिए, और एक एक करके सारे कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे और क्यों इनकी जरूरत है ये भी हम बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं पोरिंग बेसिन से. लेट्स बिगिन विद पोरिंग बेसिन. सो पोरिंग बेसिन इज अ रीजन फ्रॉम वेयर वी पोर मोल्टेन मेटल इनसाइड द कैविटी. यहाँ पे आप मोल्टेन मेटल यहाँ से आप रखते हैं, इसमें मोल्टेन मेटल यहां से ऐसे पोर करते हैं. नाउ व्हाई द शेप ऑफ दिस पोरिंग बेसिन इज लाइक दिस? वी वांट टू अवॉइड टर्बुलेंस. हम टर्बुलेंस को अवॉइड करना चाहते हैं. पहली बात तो ये, हम नहीं चाहते कि बहुत ही हाई वेलोसिटी से यहाँ से लिक्विड फ्लो करे, स्प्लैशिंग हो, उसमें टर्बुलेंस हो, जिससे कि हमारा जो मोल्ड है वो डैमेज हो जाए. वी डोंट वांट दैट थिंग. सो फॉर दैट पर्पज ओनली वी प्रोवाइड सम काइंड ऑफ डेप्थ हियर इन पोरिंग बेसिन, so that it will work as a reservoir. It will work as a reservoir, and the metal will flow like this slowly to this sprue. ठीक है, अब sprue से होगा आगे जाएगा. तो पोरिंग बेसिन basically work as a reservoir, and from this we from here only we pour molten metal. I think this is clear.
rather after we will also discuss about how much depth is required, how much this curvature is required, we will discuss in design portion. अभी हम familiar हो रहे हैं component से, तो अभी आप familiar हो लीजिए, डिजाइन वाला पोर्शन तो हमें करना ही है आगे. सेकेंड एलिमेंट इज स्प्रू. सो पोरिंग बेसिन के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज नोन एज स्प्रू. ओके, नाउ स्प्रू इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, very important element in gating system. So the shape of sprue is a little tapered. Shape of sprue is a little tapered. Why is this shape is tapered? I will let you know. Okay, there is a derivation also, and there is a very crude way to explain this also. I am just defining the concept of crude way, और derivation के बाद हम आगे देखेंगे. So if you are pouring molten metal from this area, from this side, so area is very high at the upper area. A1 is much better as compared to A2. So A2, let's say this lower portion, यहाँ पर जो है इस एरिया को मैंने A2 बोला जो कि छोटा होगा, और ऊपर वाला एरिया A1 है जो कि बड़ा होगा. So all we know the continuity equation, which is A1 V1 equal to A2 V2. So in portion A, the area is bigger as compared to A2, so the velocity will be less. यहाँ पे जो V1 है वो कम होगा, and in region 2 the velocity will be high. Now consider if we use a cylindrical sprue like this. Okay, ऐसा अगर हम यूज करें तो क्या होगा, आपका जब मोल्टन मेटल यहां से पोर करोगे, सो आफ्टर जब मोल्टन मेटल आपका यहां तक पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी हाई हो जाएगी, और जो आपका फ्लो रीजन है, तो फ्लो रीजन है, आप देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2. ओके, नाउ यहां पर एरिया कम है ऊपर, सो सॉरी एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा. नीचे वाले पोर्शन में आपको पता है व्हेन मोल्टन मेटल विल फ्लो डाउनवर्ड्स द वेलोसिटी विल इंक्रीज, and if velocity is increasing then the flow area will decrease. ये जो फ्लो एरिया है इसी के अंदर आपका मोल्टन मेटल फ्लो करेगा, ठीक है. अब इसका एरिया कम हो रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन, ये वैकेंट पोर्शन बच जाएगा यहाँ पे. लेट्स यूज डिफरेंट कलर फॉर वैकेंट पोर्शन. सो दिस ब्लू वन इज वैकेंट पोर्शन, एंड दिस वैकेंट पोर्शन मे ट्रैप सम गैसेस फ्रॉम आउटसाइड. ओके, सो एयर एस्पिरेशन हो सकता है यहाँ पे, फ्रॉम हियर ओनली एयर aspiration may occur. Okay, so this empty space may invite some environment gases, okay, which will cause casting defect. To avoid this air aspiration, हम क्यों जगह दे फालतू में हवा आने को, so we will make our sprue like this taper shape में, ताकि वो जो इंट्रैप हो रहा है एयर उसके लिए जगह ही ना बचे. Okay, so this is one way to explain this thing. There is another way by using some fluid concept, and you will get a hyperbolic relation between area and height, velocity and height. So वो चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे जब हम डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उससे भी आपको पता चलता है कि why do we use sprue as a tapered shape. Okay, so I think यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगा कि भाई इसको क्यों हम ऐसे टैपर रखते हैं. Now रनर इज द हॉरिजॉन्टल पोर्शन आफ्टर स्प्रू. जो स्प्रू के बाद जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ये आपका रनर है, ठीक है. ये रनर जो है आपको स्प्रू को गेट से जोड़ता है. ओके, अब इसका भी जो शेप है हम भाई ऐसे ट्रपोजाइडल वाला शेप यूज करते हैं. ओके, ट्रपोजाइडल वाला शेप यूज करते हैं. वो किस लिए, ताकि भाई इसमें जो सरफेस एरिया है, सॉरी जो टर्बुलेंस है वो कम हो. वी डोंट वांट टर्बुलेंस हियर. टर्बुलेंस से काफ़ी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं. सरफेस यहाँ पे जो कास्टिंग आयरन सरफेस है वो भी डैमेज हो सकता है. तो टर्बुलेंस को अवॉइड करने के लिए इसको भी हम ट्रपोजाइडल शेप में बनाते हैं, जो आपका रनर होता है. डिजाइन में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो वो भी थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ आपको. ये चीज़ फिर रिपीट भी होंगी जब हम डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे तो. ओके, नाउ द गेट. इंपॉर्टेंट थिंग इज गेट. We use a different kind of gate. What is gate basically? Gate is an opening at the end of runner. Okay, runner के end में जो opening होता है जहां से जो molten metal आपके cavity में जाएगा, that is known as gate. Okay, so gate is an opening at the end of runner which provides molten fluid to cavity. बस इतना गेट होता है. अब गेट के 4 टाइप है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ये 4 टाइप कौन कौन है और इन 4 टाइपों की जरूरत क्यों पड़ गई हमको, एक ही से क्यों नहीं काम चलाया हमने, वो भी हम डिस्कस करेंगे.
नाउ सिक्स पोर्शन इज राइजर. राइजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये हमारा जो एक्स्ट्रा जितना हमको मोल्टेन मेटल की जरूरत पड़ती है श्रिंकेज के बाद, वो यही देता है. Okay, in first or second lecture only, we have discussed about the allowances, the shrinkage, and there I told you that liquid shrinkage and solidification shrinkage is compensated by riser. तो ये riser होता है भाई. अब riser का भी shape हम cylindrical लेते हैं. वो क्यों लेते हैं? उसका भी reason है. We don't want that if we keep metal inside this riser, और वो जो metal है वो आपके cavity के metal से पहले ही solid में convert हो जाए. हम ये नहीं चाहते हैं. Okay, we don't want that the molten metal inside riser gets solidified before the solidification of the casting itself. अगर ये खुद ही solidify हो गया riser, तो आपको molten metal कहाँ से provide करेगा? That's why we need to give a proper shape of riser also to reduce heat dissipation. ओके, ताकि जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसिपेट ना हो, इसका सरफेस एरिया जो है कम हो, जिससे कि ये ज़्यादा देर तक हमारा मोल्टेन मेटल स्टेज में रहे. ओके, तो वो भी चीज़ हम डिजाइन में देखेंगे भाई कैसा डिजाइन अच्छा रहेगा इसके लिए. नाउ चिल. ओके, अब चिल का जो नाम है ना वही इसका काम भी है. चिल जो होता है ये चिल मार के जो आपका है जो चिल जो आपको कूलिंग जो हीट होता है आपका किसी भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा रीजन है, जैसे अभी इसको एक्चुअली में डायग्राम के साथ ही बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो चिल वाले पोर्शन को हम नेक्स्ट लाइन में जब डायग्राम देखते हैं वहां पे जब डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा. यहाँ पे अभी डायग्राम मैंने ऐड नहीं किया है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड के लिए अभी रोक देते हैं. तो चिल के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ओके, so these are the elements of gating system, and in next lecture we will also discuss about the design of all these important things. अब जो competition point of view से important है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो है वही चीज़ पढ़ेंगे हम. बहुत ज़्यादा रिसर्च के बारे में भी नहीं पढ़ना है हमें. ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग गेट और स्टेप गेट के बारे में. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि कहाँ पे कौन सा यूज होता है. Now top gate, from name itself, if molten metal comes from upward direction, then it is known as top gate. ऊपर से अगर आ रहा है भाई top gate है साधारण तरीका. Bottom gate, if you are providing molten metal from the beneath of this mold cavity, okay, from this direction, नीचे से अगर आ रहा है आपका molten metal, okay, so from bottom surface it is known as बॉटम गेट. अब भाई दोनों का ले लो, आप दोनों का एक भाई मतलब एक ऐसा ले लो कि जो पार्टिंग गेट विच इज वर्क एज टॉप गेट एज वेल एज बॉटम गेट, तो इट इज नोन एज पार्टिंग गेट. सो इन द पार्टिंग गेट व्हाट हैपेंस, इफ यू ड्रॉ अ लाइन हियर, तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है इसके लिए दिस गेट विल वर्क एज बॉटम गेट, एंड द रीजन बिलो दिस लाइन विल से नहीं भाई दिस गेट इज एक्टिंग लाइक टॉप गेट फॉर मी. तो पार्टिंग गेट जो है दोनों में सुलह करा देता है बॉटम गेट और टॉप गेट में. वो सुलह बहुत ही इसेंशियल है. इसी सुलह के वजह से बिकॉज ऑफ दिस सुलह को अब किस तरह मैं बताऊं, आप हिंदी वाले लोग बस समझ जाओ. बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो यूज ऑफ पार्टिंग गेट है वो बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज वगैरह में. वी यूज पार्टिंग गेट वेरी मच एज कम्पेयर टू बॉटम और टॉप गेट. अब कुछ हो गया सर बॉटम और टॉप में इतनी खराबी क्यों है कि पार्टिंग गेट की जरूरत पड़ गई, तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को. जब हम ये टॉप गेट यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि ऊपर से आपका मोल्टेन मेटल आता है. अब भाई ऊपर से कोई चीज़ एकदम डायरेक्टली फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली उसका फ्लो रेट ज़्यादा होगा, टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, तो दिस मे कॉज टर्बुलेंस. तो ये सारे मेटल के लिए सही नहीं होता है. ये केवल फेरस मेटल के लिए यूज़ करते हैं. फेरस मेटल के लिए क्यों यूज़ करते हैं भाई, उसका जो फ्लोएबिलिटी होती है फेरस मेटल की वो थोड़ी कम होती है. ठीक है, तो उनको अगर नीचे से हम पहुँचाएंगे तो पहुँचेंगे ही नहीं. तो इसीलिए केवल फेरस मेटल के लिए ये भाई हम टॉप गेट यूज करते हैं. ठीक है, ओनली फॉर फेरस मेटल वी यूज टॉप गेट. ओके, अदरवाइज इट विल कॉज टर्बुलेंस विच इज अनडिजायरेबल फिनोमिना फॉर कास्टिंग. ओके, अब जो एलॉयज वगैरह हैं जो कि आपके नहीं है वो फेरस एलॉयज नॉन फेरस मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं बॉटम गेट. बट इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें आ जाता है भाई अनडिजायरेबल नॉन डिजायरेबल कूलिंग रेट. इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है. अब भाई नीचे से आपका मटेरियल जा रहा है, ठीक है, ये मोल्टेन मेटल नीचे से आ रहा है, ऊपर वाला सरफेस ऊपर जाएगा. अब ऊपर वाला सरफेस सॉलिडिफाई अगर हो गया
ऊपर वाला सरफेस सॉलिडिफाई हो गया, सो द मूवमेंट ऑफ दिस अपर थिंग विल नॉट हैपन प्रॉपरली, और आपका मोल्टेन मेटल जो ये मोल्ड कैविटी है पूरा सही से भर भी नहीं पाएगा और बीच में ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो इन बॉटम गेट व्हाट हैपेंस, अनफेवरेबल जो आपका कंडीशन है सॉलिडिफिकेशन का वो यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, हमको ये चाहिए नहीं. और यहाँ पे टॉप गेट में क्या होता है भाई, नीचे से आपका फिलिंग हो रहा है, चलिए नीचे से आप सॉलिडिफाई होते जाइए, ऊपर वाला भी तो भर रहा है ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नीचे सॉलिडिफिकेशन पहले हो जाएगा तो. लेकिन यहाँ अगर पहले सॉलिडिफिकेशन यहाँ पर हो गया ऊपर वाले सरफेस पे, तो हाउ दिस पोर्शन विल मूव आउटवर्ड्स अपवर्ड. ठीक है, तो अनफेवरेबल यहाँ पर जो सॉलिडिफिकेशन डायरेक्शन है. ठीक है, ये यहाँ पर इसीलिए बॉटम गेट का भी भाई थोड़ा सा हमें दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है इसको यूज करने में. और टॉप गेट में आपको बता ही दिया भाई इसमें टर्बुलेंस आ जाता है, केवल फेरस मटेरियल के लिए सही है, बाकी के लिए नहीं सही है. अब इन दोनों को सॉर्ट आउट करने के लिए, दोनों प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमने एक नया तरीका अपनाया, एंड दैट इज नोन एज पार्टिंग गेट. तो इसलिए मैंने बोला कि भाई पार्टिंग गेट जो है ये बॉटम और टॉप गेट का सुलह करा दिया. ओके, सो इट विल टेक बेनिफिट ऑफ बोथ, इट विल टेक बेनिफिट ऑफ बोथ this good favorable solidification direction from this top gate and good pouring condition without turbulence it will take from bottom gate. दोनों आपके जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो इसमें आ जाते हैं पार्टिंग गेट में, इसीलिए इंडस्ट्रीज वगैरह में ये ज्यादा यूज होता है, ये आप याद रखने की जरूरत है. नाउ स्टेप गेट. अब स्टेप गेट में क्या होता है भाई, बहुत बड़ा कास्टिंग है आपके पास, यू हैव अ वेरी लार्ज कास्टिंग टू कास्ट. So you need to have more openings, you need to have more gates to provide molten metal inside the cavity. Otherwise किसी एक पोर्शन में पता चला एक ही गेट आप यूज कर रहे हो, this will get solidify, other will remain in molten stage. ओके, या फिर वो आपको मोल्टेन मेटल वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा अगर कोई पोर्शन पहले सॉलिडिफाई हो गया तो. ओके, सो कूलिंग सॉलिडिफिकेशन जो डायरेक्शन होना चाहिए सॉलिडिफिकेशन का वो यहाँ पे सही से नहीं मिल पाएगा इन केस ऑफ लार्ज कास्टिंग इफ यू आर गोइंग टू यूज सिंगल गेट. So for proper solidification and proper cast we need to have more gates for a bigger cast. तो स्टेप गेट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत ही बड़ा कास्टिंग हो. ओके, सो यहाँ पर अब क्लास थोड़ा रोकते हैं क्योंकि टाइम भी कंस्टेंट है हमारे पास. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट चिल. सबसे पहले तो हम चिल से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज चिल? चिल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बढ़िया भी लगता है इसके बारे में बताने का, नाम ही ऐसा है चिल. सो चिल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द डिजाइनिंग ऑफ गेटिंग सिस्टम. Okay, अभी till now we have discussed about the introduction of getting elements. Now we will discuss about the designing portion, and from designing portion बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने ऐड करे हैं स्लाइड में. We will discuss about those questions in next lecture, and in next lecture only we will start the designing of getting system. Okay, so that is very important portion in point numerical point of view से. Okay, so आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं. Thank you all.